dear viewers, welcome to Study Guide. Study Guide. Learn to live, live to learn. Hello dear viewers, this is Ayaz Ahmed once again in front of you. I welcome you all on the platform of Study Guide. Today I have brought a new topic for you people that is related to the linguistics, and this is discourse analysis. Here we will discuss that what is discourse analysis, and we will also discuss on the different definitions given by different linguists. Dear viewers, I will try at my level best to clear all of your concepts about discourse analysis. But before going to the topic, I request you that if you have not subscribed my channel yet, then subscribe it now and also press the bell icon so that you may get the notification of every new video earlier and earlier. So dear viewers, now let me discuss our main topic. So you know that whenever we are going to discuss about the language, we come across different linguistic units. We must know about those units before understanding the language. So हमारे पास जो सबसे छोटा linguistic unit है वो है phoneme. Phoneme simply means the sound. So you know that the language is made up of different sounds. So the smallest unit that a linguistic can deal with is the phoneme or the sound, and it is related with phonology that tells us that how different sounds are produced. So phoneme is our smallest unit. When different phonemes or different sounds are connected with each other, they form the morpheme. What is morpheme? The smallest meaningful unit. ये linguistic में हमारे पास सबसे छोटा ऐसा unit होता है जो हमें some sort of meaning देता है. You know that morpheme can be free and morpheme can be bound. यानी free morpheme ऐसे morpheme होते हैं जो अपनी meaning खुद दे सकते हैं when they stand alone. जबकि bound morpheme ऐसे होते हैं जो bound होते हैं कि जब तक किसी free morpheme के साथ नहीं मिलेंगे तब तक कोई भी meaning नहीं देंगे. तो morpheme sounds की collection होती है, वो sounds मिलके morpheme बनाते हैं और फिर वही morphemes मिलके मुख्तलिफ words बनाते हैं और वो words मिलके मुख्तलिफ phrases बनाते हैं और वो phrases मिलके मुख्तलिफ clauses बनाते हैं और जब हम मुख्तलिफ clauses को आपस में connect करते हैं तो हमारे पास sentence आता है और जो above the sentence हमारे पास language का unit होता है उसको हम discourse कहते हैं. इट मीन्स के एक सेंटेंस से लेकर एक पैराग्राफ तक टेक्स्ट या पीस ऑफ टेक्स्ट हमें सम सॉर्ट ऑफ मीनिंग या सेंस दे रहा होगा तो उस सेंस को हम डिस्कोर्स कहेंगे या उस टेक्स्ट को हम डिस्कोर्स कहेंगे जो सम सॉर्ट ऑफ स्पेशल सेंस हमें दे रहा होगा. तो सबसे छोटा यूनिट हमारे पास होता है फनीम. फनीम मिलके मॉर्फीम बनाते हैं, मॉर्फीम मिलके वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स मिलके फ्रेज फॉर्म करते हैं और फ्रेज मिलके क्लॉज बनाते हैं, क्लॉज मिलके सेंटेंस बनाते हैं और फिर उन सेंटेंसेस को यूज़ करते हुए हम अपनी नीड के हिसाब से डिस्कोर्स क्रिएट करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर डेफिनेशंस गिवन बाय डिफरेंट लिंग्विस्ट्स अबाउट डिस्कोर्स. सो फर्स्ट डेफिनेशन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज गिवन बाय स्टब्स. स्टब्स एक वेल नोन लिंग्विस्ट हैं जिन्होंने 1983 में डिस्कोर्स की डेफिनेशन दी थी. डिस्कोर्स को सिंपली डिफाइन किया था कि डिस्कोर्स क्या होता है. अकॉर्डिंग टू द स्टब्स, डिस्कोर्स इज लैंग्वेज अबव सेंटेंस लेवल. एज आई टोल्ड यू अबाउट द डिफरेंट लिंग्विस्टिक यूनिट्स ऑफ द लैंग्वेज, सो व्हेन क्लासेस वर मेकिंग द सेंटेंसेस and using those sentences we were making the discourse according to our need. हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिस्कोर्स बनाते हैं सेंटेंसेस में से. सो स्टेप्स भी हमें यही बताता है कि डिस्कोर्स सेंटेंस से अबव लैंग्वेज होती है, यानी कि सेंटेंस मिलके हमें डिस्कोर्स बना के देते हैं. तो डिस्कोर्स इज लैंग्वेज अबव सेंटेंस लेवल. एंड फेयरलो इज आल्सो अ वेल नोन लिंग्विस्ट. ही गेव अ डेफिनेशन about discourse in 1992. He said discourse is more than just language use. हम जो language use कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के हमारे पास discourse होता है. अब इसका मतलब क्या है? He says that discourse is more than just language use, whether speech or writing, seen as a type of social practice. As a social practice, हम written में कोई communication कर रहे हैं या हम oral में कोई communication कर रहे हैं, लेकिन जिस लैंग्वेज को हम यूज़ कर रहे हैं
उस लैंग्वेज का मतलब क्या है या हम उसमें से कौन सा मैसेज जो है वो कन्वे करना चाह रहे हैं, उस मैसेज को एक्चुअली हम डिस्कोर्स कह सकते हैं। तो फिर लोग क्या कहते हैं, डिस्कोर्स इज मोर देन जस्ट लैंग्वेज यूज वेदर स्पीच और राइटिंग सीन एज अ टाइप ऑफ सोशल प्रैक्टिस। तो सिंपली इसका मतलब यही है कि सोशल प्रैक्टिस यानी कि अगर हम सोशली कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, चाहे वो रिटन हो चाहे वो ओरल हो, लेकिन उसमें जो हम मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं उस मैसेज को हम डिस्कोर्स कह सकते हैं। एक और डेफिनेशन है हमारे पास कि अ डिस्कोर्स इज अ बिहेवियरल यूनिट। इट इज अ सेट ऑफ utterances which constitute a recognizable speech event, for example conversation, joke, a sermon, etc. तो डिस्कोर्स क्या होता है, कोई भी बिहेवियरल यूनिट होता है जिसमें हम कोई ऐसी अटरेंस बना रहे होते हैं, यानी कोई ऐसी चीज अटर कर रहे होते हैं जिसमें कोई खास मैसेज हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वो भी डिस्कोर्स में आती है, अगर कोई जोक सुना रहे हैं तो वो जोक भी हमारे डिस्कोर्स में आता है, और अगर कोई सरमन किसी को हम कोई खिताब कर रहे हैं तो वो भी हमारा डिस्कोर्स में आता है। तो डिस्कोर्स जो है वो मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकता है। इट इज यूज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। It can be used in the context of verbal communication. It can be used in the context of direct or indirect speech, or it can also be used for chatting with friends or family, etc. So different context में हम इसको ले रहे हैं, verbal communication में, direct indirect speech में, और हम chatting etc. में। तो किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन के लिए जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसमें से मैसेज कौन सा कन्वे हो रहा है उसको हम डिस्कोर्स कहते हैं। तो इन्हीं कॉन्टेक्स्ट को सिंप्लीफाई करके कुछ लिंग्विस्ट ने कुछ और भी डेफिनेशंस दी हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो भी आपके साथ शेयर करता जाऊं। अकॉर्डिंग टू सम लिंग्विस्ट, डिस्कोर्स इज द क्रिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ अ लैंग्वेज अबव एज वेल एज बिलो द सेंटेंस। I repeat for you that discourse is the creation and organization of statements of a language above as well as below the sentence. इसका सिंपली मतलब ये है कि किसी भी लैंग्वेज के स्टेटमेंट्स को ऐसे सेट करना कि मैसेज इजीली और क्लियरली कन्वे हो जाए। वो स्टेटमेंट सेंटेंस के लेवल से अबव भी हो सकती है और बिलो भी। इट मीन्स वो स्टेटमेंट किसी सेंटेंस से छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी, मगर उसका मैसेज हमेशा सेंटेंस से अबव होगा। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। लुक एट ऑल ऑफ दीज पिक्चर्स। इन पिक्चर्स में स्टेटमेंट सारी की सारी सेंटेंस से छोटी हैं, मीन्स ये फ्रेजेस हैं मगर मैसेज सेंटेंस से बढ़ा दे रही है। सो ऑल ऑफ दीज पिक्चर्स आर शोइंग सम सॉर्ट ऑफ द डिस्कोर्स। दैट डिस्कोर्स इज द मैसेज दैट दीज पिक्चर्स आर कन्वेइंग। ये मैसेज जो है वो सेंटेंस लेवल से अबव है, इट इज़ द अबव द सेंटेंस। बट अगर आप इसकी लेंथ को देखें, अगर आप, मैंने जिस तरह आपको लिंग्विस्टिक यूनिट्स के बारे में बताया, अगर आप उनके हिसाब से देखें तो ये सारे के सारे फ्रेज हैं, यानी सेंटेंस लेवल से बिलो हैं, लेकिन इसका जो मैसेज आ रहा है वो अबव द सेंटेंस आ रहा है, तो इसे हम डिस्कोर्स कहते हैं। एज नाउ वी हैव डिस्कस्ड the term discourse and we know now that what is discourse. So now is turn to discuss about discourse analysis. Our main topic was discourse analysis and now we are moving towards it, and now I am going to share the definitions given by different linguists about discourse analysis. So first definition that I am going to share with you people is given by Stubbs in 1983. He says discourse analysis is concerned with language use in social contexts and in particular with interaction or dialogue between speakers. So स्टब क्या कहता है कि डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो लैंग्वेज यूज़ के बारे में हमें बताती है कि हम सोशल कॉन्टेक्स्ट में किसी लैंग्वेज का यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं, स्पेशली जब दो स्पीकर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, डायलॉग करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो उनकी कन्वर्सेशन में जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो कौन सा मैसेज कन्वे कर रही है, इसको देखने का, उस मैसेज को ढूंढने को हम डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं। कि भाई हमें पता चलेगा कि डिस्कोर्स क्या होती है, लेकिन जब दो अगर स्पीकर्स आपस में बात कर रहे हैं या अगर कोई चैटिंग वगैरह हो रही है या किसी भी किस्म की कोई भी फॉर्मल या इनफॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है, लेकिन वो जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसमें से मैसेज कौन सा कन्वे हो रहा है, उस मैसेज को, उस डिस्कोर्स को ढूंढने
के प्रोसेस को हम डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं। एंड ब्राउन एंड यूल gave the definition about discourse analysis in 1983. They says that discourse analysis is the analysis of the language used. It means discourse analysis क्या होता है, इस चीज़ को एनालाइज करना कि लैंग्वेज जो यूज़ हो रही है वो कौन सा मैसेज कन्वे कर रही है, या ये लैंग्वेज क्यों यूज़ की गई है, इससे राइटर की या स्पीकर की क्या इंटेंशन थी, वो लैंग्वेज यूज़ करते हुए उस राइटर या स्पीकर के इंटेंशन को ढूंढने का या चेक करने का प्रोसेस जो होता है उसको डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं। Some linguists also say that discourse analysis is an attempt to discover linguistic regularities in discourse using grammatical, phonological and semantic criteria. For example, cohesion, anaphora, इंटर-सेंटेंस कनेक्टिविटी एटसेट्रा। ये सिंपली मीन्स कि जब डिस्कोर्स एनालिसिस की हम बात करते हैं तो हम उस अटेम्प्ट की बात करते हैं इसमें हम ग्रामेटिकल, फोनोलॉजिकल और सेमेंटिक क्राइटेरियाज को यूज़ करते हुए हम किसी भी लैंग्वेज यूज़ का मतलब ढूंढते हैं, या स्पीकर ने जो मैसेज अपनी लैंग्वेज के ज़रिए कन्वे करने की कोशिश की है उसको हम ढूंढते हैं। और ग्रामेटिकल, फोनोलॉजिकल और सेमेंटिक क्राइटेरिया क्या होते हैं कि हम उसमें कोहेजन को देखते हैं कि भाई जो सेंटेंसेस हैं उनका आपस में क्या लॉजिकल रिलेशन है, और इंटर सेंटेंस कनेक्टिविटी को देखते हैं कि भाई सेंटेंसेस के में जो वर्ड्स हैं उनका आपस में क्या ताल्लुक है, वो क्या कैसा मैसेज कन्वे कर रहे हैं, और जो सेंटेंसेस कंप्लीटली जो यूज़ किया गया उन सेंटेंसेस का आपस में क्या कनेक्शन है। हम इसको यूज़ करते हुए किसी भी पीस ऑफ टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं और उसमें से मैसेज निकालने की कोशिश करते हैं। वी कैन आल्सो से दैट इट इज़ एन एफर्ट टू इंटरप्रेट व्हाट द राइटर और स्पीकर इंटेंड टू कन्वे विद इन अ सेंसिटिव सोशल कॉन्टेक्स्ट। किसी भी सोशल कॉन्टेक्स्ट में अगर किसी राइटर या किसी स्पीकर ने एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है पब्लिक के लिए, तो उसमें कौन सी उसकी इंटेंशन थी और एक्चुअली वो क्या कन्वे करना चाहता है, किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने के बाद या किसी भी स्पीच को सुनने के बाद उसको इस चीज़ के लिए एनालाइज करने को हम डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट इफ अ फादर सेज टू हिज सन, इज दैट योर खुश ऑन द फ्लोर अगेन? कैन यू गेस दैट व्हाट शुड बी द आंसर? Exactly, you will be thinking that the answer should be yes dad, it's my coat, or no dad, it's not my coat. Is this answer correct? Do you think that this answer is appropriate according to the statement? If you are thinking like this, you are absolutely wrong, because if we deal this sentence on the sentence level, अगर हम इस सेंटेंस लेवल पे इस सेंटेंस को देखें तो इसका मतलब तो यही बनता है भाई, एक स्पीकर जो है या एक फादर जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है और उसका आंसर हो सकता है येस और नो। लेकिन अगर इसको हम डिस्कोर्स लेवल पे देखें, अबव द सेंटेंस देखें, तो फादर उससे पूछ नहीं रहा बल्कि उससे ये कह रहा है कि भाई ये अपना कोट यहाँ से उठा लो। तो अगर वो कोट उसका है तो आंसर शुड बी ओ सॉरी डैड, यस इट्स माइन बट आई एम टेकिंग इट राइट नाउ। लेकिन अगर वो कोट उसका नहीं है, सॉरी डैड इट्स नॉट माइन बट आई एम टेकिंग इट राइट नाउ, तो ये आंसर हो सकता है। तो इसको कहते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस कि भाई एक स्पीकर जो सेंटेंस यूज़ कर रहा है एक्चुअली उसकी इंटेंशन क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है। इट्स डिस्कोर्स एनालिसिस। आई थिंक द कंसेप्ट अबाउट डिस्कोर्स एंड डिस्कोर्स एनालिसिस शुड बी क्लियर नाउ. I will tell you the history of discourse analysis in the next video. So subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification of every new video earlier and earlier. Thank you so much and goodbye for right now.